has two different types of data types. First is primary or built-in data types and second is derived data types. Primary data types में है integer, character, float and void. Derived data type में है array, pointer, structure, union and enumeration. Thus we have already studied in previous lecture, but within a short 5 minutes we'll take a review of previous lecture. Okay, built-in data types में पहला है integer. Integer is a data type for whole number. Okay, whole number means 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1000 without a decimal point. If I say 22.5, this is not a whole number. 22 is a whole number. Okay, so integer data type represents the whole number. This integer data type is again divided into two. Integer में again दो types है, sign integer, unsigned integer. Okay, unsigned integer means sign is not mentioned, it is only 22. And if I say sign integer, it can be plus or it can be minus. That means plus 22 minus 22. Okay, again in sign integer we have two types: short sign integer, long sign integer. It is according to the size allocated to that particular integer. In unsigned integer, short unsigned integer and long unsigned integer is there. Okay. So this is the short sign integer, size is 2 byte. Unsigned short integer sign is 2 bytes. Okay. And for long integer, sign long integer, unsigned long integer size is 4 byte. The memory size required to save this integer is 4 byte for long integer. The range is from minus 32,768 to 32,767 for short integer, and for unsigned short integer it is 0 to 65,535, because we are not using sign here, so it is in the by default plus we can say. Okay, and this is the range for long sign integer, that is minus 214 483,648 to the 214,483,647. Okay. Now character. Character is a single character. Okay, a single character, and this char is a data type for character and special symbol. In a single character, it can be a upper case A to Z, lower case A to Z, the number 0 to 9 and special characters that we have already seen. All this comes under into the character data type, but here it is going to be accept only one character at a one time. So the size of character is 1 byte. Okay, it is divided into the signed character and unsigned character. The range of signed character is minus 128 to 127, and the range of unsigned character is 0 to 255. So this character range means number means what now this. Okay, so this number represents the ASCII value of character. Number क्या represent करता है? This 0 to 255, this is one number. Then where is your where is your alphabets when you ask, or where is your special character like hash or question mark? So all these things are come under this 0 to 255. Okay, that is nothing but your ASCII value for that particular character. Now float. Float is a data type for real numbers. Real numbers means it is always with decimal point. So if I want to represent 22.5, so that is the float number. Okay. Again, float has a three types: simple float, double, and long double. So it is according to the size and according to the how many decimal places it will support. So in a float, it will support, it is a memory size is 4 byte, for double it is 8 byte, and for long double it is 10 byte. And the range is 1.2 E minus 38 to 3.4 E plus 38. Now what is this E? E stands for exponent. Okay. So float number is represented in three terms: साइन, मैंटेसा एंड एक्सपोनेंट. सो अगर मैंने लिखा है 22.5, ओके, क्या लिखा है 22.5, सो 22.5 को कैसे लिखा जाएगा? इट कैन बी रिटन एज अ
225 into 10 raised to -1. ओके, कैसे लिखा जाएगा? 225 into 10 raised to -1. सो 225 क्या है? मैंटेसा. माइनस इज अ साइन एंड 10 raised to -1, -1 का जो 1 है दैट विल बी योर एक्सपोनेंट. ओके, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? इफ आई वांट टू राइट इट अगेन, so I can write it like 2250 into 10 raised to -2, ऐसे भी लिख सकते हैं. So in this 2250 is a mantissa, minus is a sign, and 10 raised to -2 का जो 2 है that will be a exponent. So float number is represented in a in this format: sign, then mantissa and exponent. In this format it is written. Okay, so simple float supports 6 decimal places. Then double float supports 15 decimal places and long double support 19 decimal places. Decimal places matlab after point whatever places are there, like 22.5123. So point के बाद क्या है? 5123. So these are the decimal places. So if I want more precision, we can use double, and again more than that precision we can use long double. Okay, कोई भी, so it is depend on the different types of data used for a different applications. Void. Void basically, void type specifies no value is available and it is used for three kind of situation. पहला है कोई void function है. Void function in a C which do not return any value. Okay, कोई मुझे function है वो कोई भी value return नहीं करने वाला है. So that can be considered as a void type of function. Okay, void arguments as a function arguments as a void. That means any function is not taking input. कोई भी input नहीं ले रहा है. So in that case that will be act as a function arguments as a void. And pointer to the void, it represents pointer to the void. That means pointer of type void represent the address of an object but not its type of, means which type of data it is. It represents the address of that particular data. In that case that pointer is a void pointer. Void pointer we are going to study in detail when we are going to study pointers. Now derived data types. Array, उसमें क्या आता है? Array आता है. Array is a collection of similar data types. इसके पहले हमने जो 4 डेटा टाइप स्टडी किए हैं, प्राइमरी डेटा टाइप्स. ओके, प्राइमरी डेटा टाइप्स में क्या आता है? इंटीजर, देन कैरेक्टर, देन फ्लोट एंड देन void. ओके, सो अरे अगर हमें बनाना है तो अरे शुड बी अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स. मतलब अगर मुझे अरे बनाना है तो सिर्फ कैरेक्टर का अरे बन सकता है, नहीं तो इंटीजर का अरे बन सकता है, नहीं तो फ्लोट का अरे बन सकता है. तीनों का मिला के अरे नहीं बनने वाला है. मतलब इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर तीनों मिला के अरे नहीं बनने वाला है. अरे अगर बनाना है तो अरे शुड बी अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा आइटम्स. ओके, so it should be a collection of only integer or only float or only char. Now this is a array. Here it is shown. Array is represent, it is a collection of different data types and it has only one name. So A is the name of a array. Now the size of array is a 3, और this is which type? This is a integer array. Okay, कौन सा array है? ये integer array है. So ये जो position है इसको zeroth position बोला जाता है. This is accessed by writing a of 0. This is accessed by writing a of 1. This is accessed by writing a of 2. और ये है zeroth position, first position, second position. This is the index to access the data into that array or to save the data at two particular position. So array में basically क्या रहता है? The positions, memory locations and this memory locations with this should be in a continuous manner. मतलब एक साथ होनी चाहिए. ओके, दैट मीन्स मेमोरी लोकेशन अगर मैंने 205 लिया तो अरे के लिए 205, 206, 207, 208 ऐसे होने चाहिए एक लाइन में. सो कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशंस आर यूज्ड फॉर अरे. जैसे कि 205 के बाद मैंने मेमोरी लोकेशन 307 लिया तो वो नहीं अलाउड है. ओके, कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशंस यूज करने हैं अरे में. Now next derived data types is pointer. This pointer is used, it is a special type of variable. It is used to store the memory location address of a variable. किसी भी variable का वो memory location address save करता है pointer. Okay. Now next is structure. Now structure is a collection of different data types.
जैसे कि अरे में हम 3 अलग अलग डेटा टाइप्स को कंबाइन नहीं कर सकते, बट वी कैन कंबाइन दिस इन अ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में हम कंबाइन कर सकते हैं, मतलब कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, इन सब को कंबाइन करके हम एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ स्ट्रक्चर स्टूडेंट। इसमें हमने एक पहला वेरिएबल लिया है कैरेक्टर, स्टूडेंट नेम। सो इट इज अ स्ट्रिंग एक्चुअली, क्योंकि सिंगल कैरेक्टर नहीं है। स्टूडेंट नेम, उसकी साइज कितनी है, 30 बाइट्स। देन इंटीजर रोल नंबर, एक इंटीजर लिया है। एंड फ्लोट परसेंटेज, आपके परसेंटेज कैसे रहेंगे, 72.5, 72.8, दिस आर द फ्लोट नंबर, सो परसेंटेज। सो ये यहाँ पे जो कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट ये लिखा है, ये कीवर्ड्स है। और ये जो लिखा है STUD _नेम, ये है वेरिएबल का नाम, और ये है उसकी साइज। रोल नंबर, इंटीजर, इंटीजर बोला है, सो इट इज हैविंग ओनली 2 बाइट साइज। ओके, लॉन्ग इंटीजर बोलेंगे तो यहाँ पे मुझे लॉन्ग इंटीजर लिखना पड़ेगा। ओके, सो वहाँ पे उसका साइज 4 बाइट बन जाएगा। नाउ हियर इट इज इंटीजर, दैट मीन्स इट इज अ स्मॉल इंटीजर। फ्लोट, इट इज परसेंटेज, उसका साइज क्या है, 4 बाइट है। अगर डबल लिखती हूँ यहाँ पे तो उसका साइज क्या रहेगा, 8 बाइट। ओके, सो structure, the size of this structure is what, addition of all the data types। okay, the addition of size of all the data types। ये जो तीनों डेटा टाइप्स है, इसका जो साइज है वो ऐड करेंगे, लास्ट में मुझे मिलता है 36 बाइट्स। सो ये जो पूरा स्ट्रक्चर स्टूडेंट है उसका साइज रहेगा 36 बाइट्स। ओके, नेक्स्ट डेटा टाइप, डिराइव्ड डेटा टाइप है यूनियन। यूनियन इज सेम लाइक अ स्ट्रक्चर। ओके, इसमें भी क्या है, दिस कंटेन्स द वेरियस डेटा टाइप्स। ओके, इट इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप एलिमेंट्स अंडर अ सिंगल नेम। नाउ इन केस ऑफ यूनियन, द साइज ऑफ अ यूनियन इज इक्वल टू द मैक्सिमम साइज ऑफ अ वेरिएबल। मतलब यहाँ पे स्टूडेंट नेम का साइज सबसे ज्यादा है, तो ये जो यूनियन स्टूडेंट है उसका साइज क्या रहेगा, 30 बाइट्स। दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड यूनियन। And then enumeration is is consist of a integral constant of each of them is assigned with a name। okay, जैसे वन यहाँ पे मैंने लिखा है 3210, ये क्या है, ये इंटीग्रल कांस्टेंट है, और उसको क्या नाम दिया है, 3 को नाम दिया है वर्किंग, 2 को नाम दिया है स्टैंडिंग, 1 को नाम दिया है सिटिंग। सो व्हेन आई एक्सेस वर्किंग, उसका वैल्यू मुझे मिल जाएगा 3। ओके, सो दिस इज इन्यूमरेशन। So these are the various data types we have studied. Now how to use these data types in standard input output, that is our today's lecture. Okay. Now in today's lecture we are going to see standard input and outputs in C language. Okay. Input. Input मतलब क्या? Input means to give some data into a program. Okay. To give a data to the program. And input can be given in the form of file, in the form of command line, or C programming provides a set built-in functions to read the input and feed it to the program as per the requirement. In a C language, there are predefined functions are there which is used to take the data फ्रॉम इनपुट। ओके, जैसे फाइल से इनपुट ले सकते हैं, कमांड लाइन से इनपुट ले सकते हैं, वहां से डेटा लेके प्रोग्राम में पास करने के लिए इन अ सी प्रोग्रामिंग देयर इज अ स्पेसिफिक बिल्ट इन फंक्शंस आर अवेलेबल। आउटपुट मीन्स टू डिस्प्ले अ डेटा ऑन टू द स्क्रीन, प्रिंटर और फाइल। मतलब आउटपुट हम कहाँ पे भेज सकते हैं, स्क्रीन पे भेज सकते हैं, प्रिंटर को आउटपुट भेज सकते हैं और फाइल को भेज सकते हैं। ओके, एंड अगेन इन सी प्रोग्रामिंग बिल्ट इन फंक्शन है टू सेंड द आउटपुट फ्रॉम अ प्रोग्राम। प्रोग्राम में से आउटपुट जाने वाला है टू द स्क्रीन, प्रिंटर एंड फाइल। एंड इनपुट में क्या होता है, इनपुट इज कमिंग फ्रॉम अ फाइल और अ कमांड लाइन और कीबोर्ड, वी कैन से इट इज कमिंग इन टू द प्रोग्राम। ओके, now standard files. C programming treats all the devices as a file. So devices such as display are addressed in the same way as a file, and the three devices basically we are using: keyboard, screen. Okay, two devices we can say, keyboard, screen. So in C language, so these devices are handled with handled as a file. Okay,
C programming is going to handle the devices as a file. So these file names are standard input, standard output, and standard error. And how to access that files? By using a file pointer. And which is that file pointer? stdin, stdout, and stderror. And it is for which device? It is for keyboard, screen, and here standard error is also, we are going to get it onto the screen. These are the three standard files are there. These files are used for accessing the devices, or for C programming these files are itself a device. Okay, C programming is going to be treat every device as a file. हर एक डिवाइस को वो फाइल के अकॉर्डिंग टू ट्रीट करने वाला है. So these devices we are basically using keyboard and screen. Now printf function. This is a built-in function. Whenever I use a word built-in means what? It is already present in C language. Okay. We don't have to write that function. We don't have to make a program for that function. That function is already present in C language. So the same function is printf function. ये printf function already C language में है, पर वो कहाँ पे है? Okay. How we are going to get it? Where it is present? These functions are present into the header files. कोई भी function है वो कहाँ पे present रहेगा? Header files में रहेगा. And this functions printf for output and scanf for input, these two functions are present into the header file of name stdio.h. Okay, stdio, it is a header file name. .h is a extension for header file. ठीक है. अगर मुझे ये printf फंक्शन यूज करना है तो मेरे प्रोग्राम में ये फाइल मुझे पहले से ही इंपोर्ट करनी पड़ेगी. Okay, we have to mention this file in my program. Otherwise, I am not able to use this function because the meaning of the function is present into this header file. Okay, and the printf stands for print format. And printf function uses the format specifier to specify the type of variable. printf का काम क्या है? To print something onto the screen, or to print something, that means send output to the file, or to send output to the printer also. Okay, so printf का काम क्या है? It will send the output, but while sending output, it is a which type of output? It is specified by using a format specifier. जैसे कि अगर मुझे roll number send करना है तो roll number is an integer. So before sending a roll number, उसका format specifier mention करना पड़ेगा कि what is the format specifier of a integer. जैसे अगर मुझे कोई नेम लिखना है, नेम ऑफ अ स्टूडेंट, सो नेम ऑफ अ स्टूडेंट इज अ स्ट्रिंग. ओके, सो स्ट्रिंग का मुझे फॉर्मेट स्पेसिफायर मेंशन करना पड़ेगा. इफ आई वांट टू प्रिंट परसेंटेज ऑफ अ स्टूडेंट, तो स्टूडेंट के परसेंटेज क्या है? फ्लोट नंबर. सो फ्लोट इज अ डिफरेंट डेटा टाइप्स, तो उस डेटा टाइप का फॉर्मेट स्पेसिफायर हमें printf फंक्शन में लिखना पड़ेगा. सो विल सी हाउ टू यूज दिस printf फंक्शन वन बाय वन. Okay, this is our simple program. यहाँ पे मैंने hash include stdio.h लिखा है. Okay, so hash include into the brackets stdio.h. Okay, so this is the syntax. इसी method में इसी in this way we have to write only. Okay, so this stdio.h is header file in which we will found various functions. Okay, इसमें बहुत सारे functions है, but out of that we are going to study now printf function. Okay, wait a minute. Okay. So मुझे एक सिंगल कैरेक्टर प्रिंट करना है. सो पहले मुझे वो कैरेक्टर डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पे. सो हियर आई एम नॉट टेकिंग द इनपुट, आई एम जस्ट यूजिंग अ फंक्शन printf फॉर वेरीफाइंग द आउटपुट. ओके, हम इनपुट अगर लेना है तो मुझे scanf फंक्शन स्टडी करना पड़ेगा. तो उसके पहले हम क्या करते हैं? printf फंक्शन स्टडी करते हैं. हियर आई हैव व्हाट इंक्लूडेड दिस हेडर फाइल. क्यों इंक्लूड किया है? क्यों इसका ये जो मीनिंग है printf that is present here. Okay, now this is int, और ये जो char return whatever these are the functions and standard keywords, उसका मीनिंग इसके अंदर है. सो ये हमें इंक्लूड करना पड़ता है इनिशियली इन अ प्रोग्राम. वैसे ही अगर मुझे अदर फंक्शंस यूज करना है तो उसके अदर लाइब्रेरीज है वो यहाँ पे हमें इंक्लूड करने पड़ते हैं. देन ओनली वी आर एबल टू यूज दैट फंक्शंस. ओके, सो दिस इज माय मेन फंक्शन which is of integer type. So that means इसका आउटपुट जो भी है रिटर्न रहेगा that will be
integer written. Okay, now character यहाँ पे मैंने डिफाइन किया, दिस कैर इज अ की वर्ड. ओके, और कैरेक्टर कौन सा है, ch कैरेक्टर है. Here I mention in a single quote that a character is there. Okay, so this is a variable declaration. Okay, variable declaration बोलेंगे हम इसे, कि कौन से टाइप का वेरिएबल है, कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है. वेरिएबल का नाम क्या है, ch. यहाँ पे मैंने ch दिया है, आप कुछ भी ले सकते हैं, ए बी सी डी एक्स वाई जेड. सिर्फ आपको वो रूल्स फॉलो करने हैं कि द नेम शुड बी स्टार्ट विथ अल्फाबेट, ना नंबर से नहीं शुरू होना चाहिए. एंड इट कैन हैव ओनली अंडरस्कोर एंड डॉलर साइन इन इट. Okay, so that rules we need to follow. So I can give here division div also, that any name I can give. Just while giving a name I need to follow that rules that we have already studied in previous lecture. Now मुझे ये कैरेक्टर प्रिंट करना है, तो कमांड इज printf के डबल कोट कैरेक्टर इज, ऐसे मैंने लिखा है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, माई कैरेक्टर इज और माई डिवीजन इज. विच फॉर्मेट स्पेसिफायर, कैरेक्टर का फॉर्मेट स्पेसिफायर है %c /n, दैट इज इट शुड बी डिस्प्लेड ऑन अ न्यू लाइन, कॉमा. ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या बता रहा है कि दिस फॉर्मेट स्पेसिफायर इज टेलिंग दैट द डेटा इज ऑफ char टाइप, and which data, ch is a data. So you will get the output like this, character a. Okay, I will just explain here and we'll do it on the compiler also. Now integer, same way, this is a simple programs I have made. So यहाँ पे you have to include the header file, you have to mention your function, then int my number. डाल दे. Mute करो, somebody is unmuted. Okay, please mute your mic. Now integer, here it is a int. Int is a keyword which is used to define the variable, that which type of variable it is. Okay, integer type of variable it is int. कौन सा वेरिएबल है, my num, ये मैंने नाम दिया है, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं. यहाँ पे कौन सा नंबर है, 150. ओके, सेमीकोलन टू टर्मिनेट द लाइन. नाउ printf, here integer value is, कौन सी इंटीजर वैल्यू है, इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, %d. इट शुड बी प्रिंटेड ऑन अ न्यू लाइन, सो यहाँ पे दिया है /n. %d indicates integer number, कौन सा इंटीजर नंबर, my num integer number. So what it will print, it will print integer value is 150, ऐसे प्रिंट करेगा, integer value is 150. So माई नम का वैल्यू 150 है, मुझे अगर माई नम का मैंने यहाँ पे 100 दिया तो यहाँ पे 100 प्रिंट होगा, जो भी वैल्यू आपने असाइन किया है वो यहाँ पे प्रिंट होने वाला. सो माई नम एक इंटीजर है. सो इस इंटीजर का वैल्यू अगर मुझे प्रिंट करना है तो पहले उस इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर हमें देना पड़ता है विद इन दिस डबल कोट, एंड आफ्टर कॉमा विच इंटीजर इट इज, वो हमें यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है. नाउ दिस इज, पहले हमने क्या देखा था, इंटीजर माय नम 150, और उसको अगर मैंने %d स्पेसिफायर, मतलब अगर यूज करके इंटीजर का स्पेसिफायर यूज करके डिस्प्ले किया तो उसने एज इट इज 150 नंबर प्रिंट किया था. पर अगर यहाँ पे देखो printf ऑक्टल वैल्यू, यहाँ पे %d की जगह पे अगर मैंने %o लिखा, सो दिस इज फॉर ऑक्टल वैल्यू. सो ये 150 का जो भी ऑक्टल वैल्यू है वो यहाँ पे प्रिंट होने वाला है. और हेक्साडेसिमल वैल्यू अगर मुझे प्रिंट करनी है तो %x. सो हेक्साडेसिमल वैल्यू इज %x माइनम. माइनम 150 ही है, पर एज इट इज अगर मुझे 150 प्रिंट करना है तो फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या यूज करेंगे, %d. पर अगर उस नंबर का ऑक्टल वैल्यू प्रिंट करना है तो %o. उस नंबर का हेक्साडेसिमल वैल्यू प्रिंट करना है तो %x. These are the format specifier which tells that in which format you have to print. Okay, in which format you have to pass the output. कौन से फॉर्मेट में आउटपुट पास करना है ये फॉर्मेट स्पेसिफायर बताते हैं, परसेंटेज वाले. ओके, अगर %d बोला है तो इट इज अ डेसिमल वैल्यू ऑफ दैट इंटीजर नंबर.
परसेंटेज डी मतलब क्या, डेसिमल वैल्यू ऑफ दैट इंटीजर नंबर, परसेंटेज ओ ऑक्टल वैल्यू ऑफ इंटीजर नंबर, परसेंटेज एक्स हेक्साडेसिमल वैल्यू ऑफ इंटीजर नंबर। ओके, सो यहाँ पे मुझे ऑक्टल वैल्यू मिल रहा है 150 नहीं मिल रहा है, ऑक्टल वैल्यू 226 एंड हेक्साडेसिमल वैल्यू आई एम गेटिंग हियर। ओके, नाउ नेक्स्ट स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को अगर मुझे, स्ट्रिंग इज अ व्हाट, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स दैट वी हैव ऑलरेडी सीन एंड स्ट्रिंग इज ऑलवेज मेंशन इन डबल कोट। यहाँ पे सेमीकोलन होना चाहिए। string my care, my city, okay, the size is 4 बाइट। ओके, साइज कितना यहाँ पे मेंशन किया, 4 बाइट, आप 100 भी दे सकते हैं। ओके, और मैंने इसको डिफाइन किया है इन डबल कोट पुणे। ओके, सो स्ट्रिंग के आगे मैंने कैर ही लिखा है, व्हाट आई हैव रिटर्न, कैर, वेन एवर आई हैव टू मेंशन इट आई एम गोइंग टू रिटर्न इट एज अ कैर। ओके, printf my name of city, so for string if I say only c here, परसेंटेज c अगर मेंशन किया तो सिर्फ p जो है वो प्रिंट होगा, मुझे पूरा की पूरा स्ट्रिंग चाहिए। सो इन दैट केस आई एम गोइंग टू यूज द फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज s। okay, percentage s slash n is for new line and my city, it is going to print my city। okay, so name of a city is Pune, name of your city is Pune। so यहाँ पे परसेंटेज s is a format specifier for string। यहाँ पे आप साइज मेंशन कर सकते हैं, this size can be of anything। okay, 10 20 30 40 that like this way। so we have seen this scanf function, now we'll check this function on to the our online compiler। okay, I will share that screen। Are you able to see this online compiler? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Now in this we are going to get this already। ठीक है, so मुझे यहाँ पे क्या करना है अभी, I have to mention char। okay, char क्या है, char, this is a keyword। which char, वहां पे मैंने नाम ch दिया था, यहाँ पे मैं नाम देती हूँ ch2, anything will do, equal to, इसका वैल्यू क्या है, सिंगल कोट के अंदर सपोज b। ओके, नाउ दिस कैर आई हैव टू प्रिंट, कैर को मुझे प्रिंट करना है। ओके, सो हियर आई कैन राइट हेलो माय कैर इज, कैर का क्या है, फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज सी। ओके, उसके बाद मुझे यूज करना है स्लैश एन बिकॉज इट शुड बी डिस्प्लेड ऑन अ न्यू लाइन, कॉमा, यहाँ पे मैंने ch2 नाम दिया है वेरिएबल को, क्या नाम दिया है, ch2, सो आई विल राइट हियर ch2। अगर आप नाम देते ch3 div whatever name you will give, just you have to follow the rules। okay, this is a simple program, now go to run and run it। okay, so hello my char is b। okay, यहाँ पे मैं अभी char का वैल्यू चेंज करती हूँ, I will write here sa, I will see what happens। now here it is only given me the last only single character। char क्या करता है, single character ही लेता है। okay, it will take only single character, it will give me the warning and you can read that warning, that is implicit constant conversion। so it is what percentage c indicates only one char। okay,
सो इफ आई राइट ओनली वन, दैट इज एस लिखा, सिर्फ अभी मैंने यहाँ पे वैल्यू चेंज करके एस किया है, एंड नाउ आई विल रन इट. So it is showing me a single character. Okay. Now here in the same program, I will take next type of variable integer. इस integer का नाम क्या देंगे? Anything you can give A, B, C. This is my integer name. You can give anything. What value I will assign? 150. You can assign anything. Okay. Now मुझे यहाँ पे integer print करना है ना? क्या प्रिंट करना है? इंटीजर. सो हेलो, और आई विल से ओनली माय डेसिमल नंबर इज. डेसिमल नंबर के लिए क्या है? इंटीजर के लिए, इंटीजर डेसिमल नंबर के लिए है परसेंटेज डी. और कौन सा नंबर है हमारा? हमारा नंबर है ABC. ठीक है. नाउ विल रन दिस प्रोग्राम. यहाँ पे देखो एरर आ रहा है. क्यों एरर आ रहा है? क्योंकि ये मैंने ब्रैकेट क्लोज करके, I need to close this bracket and put a semicolon. Okay. Now see, hello, my char is S, and here my decimal number is 150. यही सेम डेसिमल नंबर को मुझे ऑक्टल चाहिए. ओके, ऑक्टल में करना है सेम डेसिमल नंबर. इंटीजर डेसिमल जो मैंने ऊपर स्पेसिफाई किया है, दैट आई हैव टू मेंशन इन ऑक्टल. तो यहाँ पे मुझे फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या करना है? O. और वही नंबर है ABC. ABC का वैल्यू 50 है, पर 150 है, सॉरी 150 का जो भी ऑक्टल रहेगा that will be displayed over here. Okay, so we can run this. So see here, now this format specifier percentage O will print. This will tell that the printer that the whatever value is going to be print, that is in the octal format. Yes, any doubt? आता ह्याच्यात शांत राहायचंय, आता काही टेन्शन नाही घ्यायचं. सीईटी होऊन जाऊ दे. सीईटी झाल्यानंतर Somebody has unmute. Please mute the mic. आणि काय आहे सगळं प्रश्न विचारतो, बाकीच्यांना नाही विचारत. Please mute the mic. Now same number I need to, इसका format specifier बदलते हैं हम. Okay, इसका format specifier I will make it hexa. Okay, and यहाँ पे लिखेंगे my hexa decimal hexadecimal number is. So 150 का जो भी hexa है, it will give over here. So यहाँ पे you can check the output. Character S, decimal number 150, उसका octal 226 and उसका hexadecimal 96. So format specifier will tell the printf function that in which format of data types it has to print the its data. जो भी data है वो उस data को कौन से format में print करना है, that is told by the format specifier. So percentage C is a format specifier for char. Percentage D is for integer decimal value. Percentage O for octal integer octal value. Percentage X for integer hexadecimal value. Okay, float number लेते हैं अभी हम. This is a keyword float. मतलब इसके आगे float क्या define करता है? Whatever I am going to writing next, that will be a variable of type float. Okay, so float में here I write temperature, TEMP. आप कुछ भी लिख सकते हैं, रूल फॉलो करना है. ठीक है, दिस इज माई फ्लोट. अभी फ्लोट को प्रिंट कैसे करेंगे? ऊपर मैंने मेंशन किया है. फ्लोट को कैसे प्रिंट करेंगे? टेम्परेचर इज. फ्लोट को प्रिंट करने के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर है F. और क्या है हमारा फ्लोट नंबर? हमारा फ्लोट नंबर है TEMP. ओके, सो फ्लोट के लिए यहाँ पे हमें देख लेना है परसेंटेज F, that is format specifier for float, and this is my float number where which is I have already declared initially.
आप पहले printf लिखेंगे बाद में नीचे डिक्लेयर करेंगे तो it will not execute. Okay, before this printf function the variable should be already declared. Okay, आप यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे तो भी चलेगा. Okay, but it should be before this printf. ये printf function के पहले होना चाहिए. So it is showing me 22.6 and up to 6 decimal points. Okay, so float is for this. अभी string, अगर मुझे string लेना है, okay, तो string के लिए भी हमें क्या यूज करना पड़ता है? char. डेटा टाइप क्या यूज करेंगे? char. और आई एम गोइंग टू गिव हियर माई सिटी एंड उसका वैल्यू 4 इक्वल टू डबल कोट में आई विल राइट पुणे एंड प्रिंटफ फंक्शन में कैसे यूज करेंगे? सिटी नेम इज, यहाँ पे स्ट्रिंग के लिए क्या आएगा? s, और क्या नाम दिया है मैंने वो वेरिएबल को? माई सिटी. स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 4 क्या है? उसका लेंथ है. ओके, so I will write over here my city and I will run this. Now see, hello, my char is s, decimal number is 150, octal 226, hexadecimal 96, temp is this, temperature is this and city name is Pune. ये मैंने आपको अलग अलग बोला है, अलग अलग printf. But by using format specifier we can print number of variables at a one time also. मतलब एक ही printf function में हम number of variables print कर सकते हैं. ओके, अभी मुझे एक ही function में print करना है. Here character को मैं बदल देती हूँ, suppose h. printf function मुझे कंबाइन करना है. ओके, my char is percentage f and my number is परसेंटेज d. ठीक है, मैंने मेंशन किया है. स्लैश n इज फॉर नेक्स्ट लाइन. सो कैर के लिए कौन सा वेरिएबल है? माई कैर के लिए हमने क्या नाम दिया है? ch2. ठीक है, अभी मैं इसका नाम देती हूँ ch ओनली. सो जो भी ऊपर नाम है ना वो यहाँ पे मेंशन करना है. उसका नाम मैंने बदला है ch, तो ch, उसके बाद कॉमा एंड नेक्स्ट इज abc. इसमें कंपाइलेशन एरर दे रहा है. So what you have to do now in a assignment, for today's assignment, you have to print here your division, your roll number, your name. Okay, string में आपको आपका नाम प्रिंट करना है, कैरेक्टर में आपका डिवीजन प्रिंट करना है और इंटीजर में आपका रोल नंबर प्रिंट करना है. वो रोल नंबर में पूरा सी वाला रोल नंबर ऐसे ऐड नहीं करना है. ओके, जस्ट लास्ट 2 डिजिट 77 72 जो है लास्ट 2 डिजिट, मतलब इंटीजर टाइप. फ्लोट में आपके परसेंटेज आपको प्रिंट करने हैं. ओके, सो फॉर दिस टुडेज असाइनमेंट
you have to write a short program, and in this program you have to print your division, your roll number, your name, and your percentage. Okay. Now next point is नेक्स्ट पॉइंट इज scanf फंक्शन. ठीक है, अभी हमने क्या किया था कि वी हैव ऑलरेडी स्पेसिफाइड द वैल्यू. कैर का वैल्यू मैंने वहां पे मेंशन किया है, फ्लोट का वैल्यू मेंशन किया है, बट वी आर नाउ हियर वी आर नॉट मेंशनिंग द वैल्यू, वी आर टेकिंग द वैल्यू फ्रॉम अ कीबोर्ड. ओके, कीबोर्ड से हमें प्रोग्राम में वैल्यू लेना है, उसके लिए फंक्शन क्या है, scanf. ओके, सो scanf में भी फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज होता है टू स्पेसिफाई द टाइप ऑफ वेरिएबल एंड इन विच वेरिएबल इट शुड बी सेव. कहाँ पे सेव होना चाहिए, जो कीबोर्ड से वैल्यू लिया है कहाँ पे सेव होना चाहिए, वो मेंशन करने के लिए वो वेरिएबल का एड्रेस मुझे मेंशन करना पड़ता है. और वेरिएबल का एड्रेस मेंशन करने के लिए उस वेरिएबल से पहले %, लगाना पड़ता है. ओके, एंड का सिंबल लगाना पड़ता है. सो जो भी हम कीबोर्ड से लेंगे, लेते समय कौन से टाइप का डेटा लेना है, कैरेक्टर टाइप लेना है, इंटीजर लेना है, फ्लोट लेना है, स्ट्रिंग लेना है, क्या मेंशन क्या लेना है हमें, ओके, कीबोर्ड से, वो हमें पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर से बताना पड़ता है. और लेने के बाद वो कहाँ पे सेव करना है उसका एड्रेस भी हमें देना पड़ता है. ओके, नाउ दिस इज सिंपल. यहाँ पे मैंने कैर के आगे इक्वल टू करके कैरेक्टर नहीं लिखा है. क्या लिखा है पहले, प्रिंट एफ एंटर एनी कैरेक्टर, सो दैट यूजर शुड कम टू नो कि मुझे कैरेक्टर एंटर करना है. नहीं तो क्या, एंटर योर डिवीजन नेम, वो मुझे यहाँ पे एंटर करना है, क्या एंटर करना है वो बताने के लिए पहले हमें एक printf फंक्शन यूज करना पड़ता है. फिर scanf फंक्शन में %c, ओनली आई एम नॉट राइटिंग मैसेज ओरियर हियर, %c इट इज व्हाट, फॉर्मेट स्पेसिफायर, कि मुझे कौन से टाइप का डेटा एक्सेप्ट करना है और कहाँ पे रखना है, ch में रखना है. पर ch का एड्रेस देने के लिए ch से पहले क्या लिखा है, %. ओके, एंड का सिंबल लिखा है. एंड देन वी प्रिंट बाय यूजिंग आवर नॉर्मल मेथड. पहले हमने यूजर से लिया scanf से और वो यहाँ पे ch में सेव किया. ch में सेव करने के बाद हमने यहाँ पे उसे डिस्प्ले कर दिया. ओके, नाउ सेम वे इंटीजर माय नंबर, उसको हम पहले एक्सेप्ट करें. यहाँ पे मैंने इंटीजर वैल्यू लिया ही नहीं है. पहले हम क्या करेंगे, अगर मुझे इंटीजर वैल्यू लेना है तो इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, %d, और लेके वो कहाँ पे रखना है, इट हैज टू बी पुट इनटू द my num variable. Okay, so the address of this my num variable is represented by using %. Okay, and then we'll print that value. फिर उसके बाद हम उसे प्रिंट करेंगे, printf you entered your integer value is, कौन सा इंटीजर वैल्यू है, सो इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर my num. फ्लोट के लिए है तो पहले हम फ्लोट एक्सेप्ट करेंगे, एंटर एनी फ्लोट वैल्यू, स्कैनअप से उसे एक्सेप्ट करेंगे एंड देन विल चेक योर एंटर्ड फ्लोट वैल्यू इज दिस. वे अगर मुझे स्ट्रिंग करना है तो स्ट्रिंग के लिए हम यहाँ पे सिर्फ मेंशन करेंगे साइज, बट हियर वी आर नॉट गोइंग टू राइट विच स्ट्रिंग, विल एक्सेप्ट द स्ट्रिंग. स्ट्रिंग एक्सेप्ट करने के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर है %s, विल एक्सेप्ट दिस एंड विल सेव एट माई सिटी एंड देन वी प्रिंट एंड वी चेक, okay, it is saved or not. So we'll do it on the compiler. Okay, so अभी यहाँ पे देखो मैंने मेंशन किया है, तो सिर्फ यहाँ पे मैंने वैल्यू नहीं लिखा है, उसका क्या वैल्यू है नहीं लिखा है, दैट वैल्यू वी हैव टू टेक इट फ्रॉम द यूजर. ओके,
जस्ट आई हैव डिक्लेयर्ड इट कि कौन से टाइप का वेरिएबल है। अभी मैंने यहाँ पे वैल्यू नहीं दिया है, फिर भी मैं यहाँ पे प्रिंट करती हूँ, देखो नाउ इट इज गिविंग मी अ एरर। ओके, इट इज अनडिक्लेयर फंक्शन, अनडिफाइंड आइडेंटिफायर, ऐसे मुझे एरर आ रहा है। सो द वैल्यू इज नॉट हियर। ओके, वैल्यू यहाँ पे नहीं है, तो वैल्यू लेना पड़ेगा हमें यूजर से, कीबोर्ड से वैल्यू मैम लेना आपने पड़ेगा। प्रिंट वैल्यू में लेने के CH लिए, लिखा है जो कि आपने ऊपर डिक्लेयर नहीं किया है। हाँ एक मिनट, ये सी एच निकालते। ओके, सो यहाँ पे क्या आ रहा है, इट इज बाय डिफॉल्ट टेकिंग फर्स्ट वैल्यू ऑफ अ कैरेक्टर स्मॉल ए दिखा रहा है वो। ओके, सो आई हैव टू फर्स्ट मेंशन और आई हैव टू असाइन अ वैल्यू टू इट। उसको वैल्यू असाइन करने के लिए हम यूजर को पहले एक मैसेज सेंड करेंगे कि एंटर कैर। ओके, यहाँ पे ये कुछ भी मेंशन नहीं करना है अभी, सिर्फ एंटर कैर एक मैसेज हम यूजर को लिखेंगे। एंड scanf फंक्शन विल डू दैट पार्ट। ओके, अभी scanf फंक्शन वो पार्ट परफॉर्म करने वाला है। scanf फंक्शन में हमें डबल कोट के अंदर क्या मेंशन करना है, एक सिंगल 1 सेकेंड। पहले हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर मेंशन करना है, तो कैरेक्टर का फॉर्मेट स्पेसिफायर है सी, कॉमा, नाउ वेयर इट शुड बी सेव्ड एट दिस वेरिएबल सी एच। ओके, बट उसका एड्रेस मेंशन करने के लिए पहले हमें यूज करना पड़ता है एम्परसेंट एंड सी एच। ओके, सो इट इज शोइंग मी एंटर कैर, एंड नेक्स्ट लाइन पे मुझे यहाँ पे कर्सर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मुझे मेरा कैरेक्टर एंटर करना है। सो आई विल एंटर अ कैरेक्टर कैपिटल एच, एंड अगेन आई विल एंटर। So where I will write H, again I will enter। ये कुछ ऑनलाइन कंपाइलर के थोड़े थोड़े से डिसएडवांटेजेस भी है। अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड इट विल नॉट शो। Now here it will continuously taking the input, should not be like this। यहाँ पे आपको यू विल गेट द आंसर दैट हेलो माय कैर इज एच। ओके, ऐसे आंसर आना चाहिए, बट देर आर सम ऑनलाइन कंपाइलर के भी कुछ कुछ विल डू इट अगेन। कैर
ch. I will mention here char ch. scanf डबल कोट में will mention format specifier %c comma these are the some drawbacks of online compiler कि standard format है फिर भी because unnecessarily it will not show. Okay, so better you work on code block, okay, initially, but here it is easy for me to do it here. Okay, so enter your char बोला आपने यहाँ पे and it is ch के आगे and क्यों लगाया? It is pointing or it is given the address where this scanf is going to save the data. Okay, अभी नेक्स्ट हम इंटीजर एक्सेप्ट करते हैं तो मैं ये ऊपर पहले इंटीजर डिक्लेयर करूंगी. इंटीजर का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं. सपोज हियर आई विल गिव XYZ. ओके, नाउ मुझे इंटीजर लेना है तो पहले मुझे यूजर को बोलना पड़ेगा. क्या बोलना पड़ेगा? एंटर द इंटीजर, एनी इंटीजर. एंटर एनी इंटीजर नंबर. ठीक है, ये हम पहले यूजर को बोलेंगे. फिर कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? scanf फंक्शन विल यूज. ओके, scanf फंक्शन में पहले मुझे डबल परसेंटेज के अंदर क्या मेंशन करना है? इंटीजर नंबर. इंटीजर नंबर के लिए, डेसिमल इंटीजर नंबर के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर है %d, कॉमा ये जो इंटीजर है वो scanf कहाँ पे लिखेगा? XYZ. तो XYZ का एड्रेस देने के लिए पहले हम यहाँ पे लिखेंगे %XYZ. ओके, नाउ विल प्रिंट दिस. प्रिंट करने के लिए printf फंक्शन पर इंटीजर नंबर इज फॉर्मेट स्पेसिफायर %d और कहाँ पे रखा है हमने? XYZ में. ओके, नाउ विल रन दिस. यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे हमारा सेमीकोलन रह गया है. कहाँ से? scanf के बाद. तो यहाँ पे सेमीकोलन दो एंड अगेन रन. Here I will enter character. Again enter. Your character is H. Enter any integer number 4526. So 4556. Enter. Your integer number is 4556. Okay. So हमें integer यहाँ पे सिर्फ मैंने integer बोला है. int integer. So it is by default considering as a unsigned small integer. Okay. So इसका वैल्यू क्या है? 0 to 65 65536 है. सो वो नंबर वहां तक वो एक्सेप्ट कर सकता है. ओके, सो अगर मुझे लॉन्ग इंटीजर मेंशन करना है तो हियर बिफोर इंटीजर आई नीड टू मेंशन लॉन्ग. आई विल टेक फ्लोट वैल्यू. फ्लोट any number you can assign. So I will assign PER is my float. So here we need to mention to the user again our printf enter float number. This is message whatever you are writing. scanf में क्या करेंगे अभी हम? in scanf within a double quote पहले फ्लोट का फॉर्मेट स्पेसिफायर देना पड़ेगा. वो क्या है? %f. ठीक है, कॉमा कहाँ पे सेव होगा? PER पे सेव होगा. तो PER का एड्रेस कैसे देंगे? एंड PER. ठीक है, और फिर उससे डिस्प्ले करेंगे. डिस्प्ले करने के लिए जो फ्लोट नंबर इज फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है फ्लोट का? %f. इसके बाद कॉमा कहाँ पे है? PER में.
अगेन यहाँ पे मैंने सेमीकोलन नहीं दिया है तो वो एरर आएगा, सेमीकोलन दो एंड रन। Second integer, I will mention any other integer. Then float number. Okay, float के लिए suppose I mention 22.5 and it will show me your float number is 22.5. ठीक है. So like this way you have to try the scanf and printf function for various data types. अगर string के लिए चाहिए तो for string I have to mention or declare the string with char. यहाँ पे I will write my city, this is the name, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं. Size क्या होना चाहिए, suppose I will write the size 10 and comma. Now how you will take this, scanf के लिए क्या यूज करेंगे आप, पहले आप यूजर को एक मैसेज दो, enter city name, after that scanf function. scanf में आपको string एक्सेप्ट करना है तो string के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर %s, कहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे, एंड माई सिटी, एंड printf में प्रिंट करना है तो यहाँ पे आएगा योर सिटी नेम, फॉर्मेट स्पेसिफायर है उसका %s और कहाँ पे है वो, कॉमा, इट इज एट माई सिटी. मैंने वो फॉर्मेट स्पेसिफायर डबल कोट में लिखा था. सिंटैक्स वी नीड टू राइट प्रॉपरली, वी हैव टू चेक फॉर सिंटैक्स. यहाँ पे नीचे थोड़ा एरर रीड करेंगे तो यू विल कम टू नो दैट ऑन विच लाइन इट इज एरर इज. नेक्स्ट टाइम आई विल डू इट ऑन कोड ब्लॉक्स एंड आई विल शो यू हाउ टू ऑन विच लाइन नंबर एरर वी आर गेटिंग. सो यहाँ पे मैंने कैरेक्टर एंटर किया, इंटीजर नंबर एंटर किया, नंबर एंटर किया एंड सिटी नेम 10 कैरेक्टर्स है. Okay, so it will take more than 10 characters. That is the drawback of string. It will showing out that the size is more than that. Okay, but we have to calculate and I give according to the size only. So if anyone is having a doubt for printf and scanf function that we have used for data types character, integer, float and char. ठीक है, अगर array के लिए मुझे यूज करना है तो उसके लिए पहले हमें कंडीशनल फॉर्मेट्स यूज करने पड़ेंगे, फॉर लूप, इफ लूप. ठीक है, इफ स्टेटमेंट वो क्या होते हैं. ओके, so that will go for that will go into the next lecture. Now here if anyone is having a doubt, please unmute your mic and ask the doubt. Okay, and in assignment you have to take, by using a scanf function you have to take your name, roll number, percentage and division
from the keyboard and you have to display it onto the screen, and that output and program both you have to post into the Google Form. ठीक है, आई एम गोइंग टू शेयर यू द गूगल फॉर्म, एंड गूगल फॉर्म में आपको ये प्रोग्राम करके पोस्ट करना है, and some questions are all are there that you have to post. Okay, and tomorrow I'm going to take a lecture on Zoom, not on the Microsoft Team. That lecture is not as per our schedule. ठीक है, हमारे schedule के according to lecture नहीं है वो,